Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Government Rule Guru. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. We know that two principal exams are around the corner. One is Eklavya Model Residential School principal and another one UPSC principal related to the Delhi boards. So today I bring series 1 20 MCQ questions on administration and finance. So please my friends subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that in posting time you can get notification for my upcoming videos. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss series 1 20 MCQ questions on administration and finance. Question number 1. The public account of India referred to in dash of the constitution. 4 articles given. Article A, it is bit A article 266.2, bit B article 267.1, bit C article 268.1, bit D article 269.1. So we know that article 266.1 related to the consolidated fund of India. Article 266.2, it is the public account of India. Here question is asking, it is public account of India. It is briefly explained in article 266.2. And another most important article, article 267.1, it is related to the contingency fund of India. So here public account of India, it is related to article 266.2. It's very important one. Answer is bit A. Question number 2. Central Services Medical Attendance Rules apply to. It is CSMA rules. Central Services Medical Attendance Rules apply to bit A government servants deputation abroad, retired government officials, railway employees on deputation to an office under central government, bit D defense services personnel. Answer is railway employees on deputation to an office under central government. Answer is bit C. CSMA rules apply to bit C railway employees on deputation to an office under central government. In CSMA rule 1944, it is clearly mentioned that government servants deputation abroad, सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स अप्लाई नहीं है. रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके लिए CSMA रूल्स 1944 एप्लीकेबल नहीं है. डिफेंस सर्विसेज पर्सनल उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है. तो आंसर इज बीट सी. जो रेलवे एम्प्लॉयज़ डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 लागू है. तो अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए किसके लिए लागू है किसके लिए लागू नहीं है. CSMA रूल्स अप्लाई टू, इट इज रूल 1 में दिया है CSMA रूल्स 1944 में. ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी, लीव इंक्लूडिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट एंड टर्मिनल लीव और फॉरेन सर्विस इन इंडिया और व्हेन अंडर सस्पेंशन उनके लिए लागू है. रेलवे एम्प्लॉयज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर ऑन डेपुटेशन टू एन ऑफिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी रेलवे एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं डेपुटेशन में उनके लिए लागू है. गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि जो गवर्नमेंट पेंशनर्स है उनका री एम्प्लॉयमेंट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में उनके लिए लागू है. प्रोबेशनर्स, जो प्रोबेशनर्स है उनके लिए भी लागू है. राइट. अप्रेंटिसेस इन होल टाइम सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी ट्रेनीज़ है वो होल टाइम सर्विस में है उनके लिए भी लागू है. किसके लिए लागू नहीं है? दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, डिफेंस सर्विसेज पर्सन के लिए लागू नहीं है. डेपुटेशन अब्रोड, दोज एम्प्लॉयज़ दे हैव गॉन टू अब्रोड फॉर डेपुटेशन उनके लिए लागू नहीं है. रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 लागू नहीं है. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 3. दिल्ली अलाउंस
is paid for a maximum period of dash days of absence from headquarters. Daily allowance is paid for a maximum period of 180 days of absence from headquarters. Answer is bit D. जो absence from headquarters, चाहे ट्रेनिंग है चाहे और कोई ड्यूटी में, सपोज कंसर्न एम्प्लॉय वो अदर हेडक्वार्टर्स में है, तो उस केस में अप टू 180 डेज डीए मिलेगा. ओके, बियॉन्ड 180 डेज में डीए नहीं मिलेगा, तो अप टू 180 डेज डीए मिलेगा. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. आंसर इज बिट डी. चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड इज नॉट रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, कैन इट बी वैलिड? 4 बिट्स गिवन. बिट ए yes, bit B no, bit C yes subject to conditions, bit D yes but with the approval of next higher authority. Answer is bit B no. Answer is bit B. हमको रूल पता है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील सिविल सर्विसेज CCA रूल्स 1965 में हमको पता है कि यदि कोई एम्प्लॉई को सस्पेंड किया जाता है तो 90 डेज के अंदर उसका रिव्यू होगा. जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक रिव्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा और रिव्यू कमिटी का रिकमेंडेशन से जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है. राइट तो यहाँ पर भी रूल है कि एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम. कभी भी सस्पेंशन एक्सटेंशन होगा मगर वो एट ए टाइम में 180 डेज से ज़्यादा नहीं होगा. तो यहाँ पर जो है, यदि 90 डेज के अंदर जिस डेट में एम्प्लॉय का सस्पेंशन होता है उससे 90 डेज के अंदर उसको रिव्यू नहीं किया जाता है सस्पेंशन को, तब वो ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होगा. तो वही क्वेश्चन पूछा है. इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड इज नॉट रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, कैन इट बी वैलिड? आंसर इज बिट बी नो. वैलिड नहीं होगा. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 90 डेज के अंदर जब एम्प्लॉय का सस्पेंशन होता है जिस डेट में, उससे 90 डेज के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा और रिव्यू कमेटी का रिकमेंडेशन से सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं डिसाइड किया जाएगा. यदि 90 डेज के अंदर कोई रिव्यू नहीं किया गया सस्पेंशन को तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा. तो आंसर इज बिट बी. चलो क्वेश्चन नंबर 5. If a government servant had committed a misconduct during his earlier employment, what action should be taken against him in his present employment? Bit A should be warned, bit B render him unfit and unsuitable for continually in service, bit C salary should be withheld for a specific period, bit D can be awarded penalty. So here answer is bit B. यदि earlier employment में गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा कोई मिसकंडक्ट कमिटेड किया है तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या एक्शन होगा ना, रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुइटेबल फॉर कंटिन्यू इन सर्विस. वो प्रेजेंट सर्विस में उसका सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए वो अनफिट एंड अनसुइटेबल होगा. राइट आंसर इज बिट बी. इसको याद रखना है. इन अर्लियर एम्प्लॉयमेंट इफ गवर्नमेंट सर्वेंट made any committed misconduct and it was proved, then in present employment if it is detected that he had done misconduct in earlier employment and it was proved, then automatically उसका सर्विस को, जो प्रेजेंट सर्विस को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा और वो अनसुइटेबल होगा प्रेजेंट सर्विस में कंटिन्यू करने के लिए. तो आंसर इज बिट बी. बहुत बार क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 6.
the rate of subsistence allowance for the period of first 3 months of suspension is bit A 30% of pay, bit B 50% of pay, bit C 60% of pay, bit D 80% of pay. आंसर इज bit B 50% of pay. कोई एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। FR 53 फंडामेंटल रूल 53 में देखिए, FR 53 में क्लियरली मेंशन है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस पे का 50% होगा। तो आंसर इज बिट बी। उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स सैलरी फॉर हाफ पे लीव, जैसे हाफ पे लीव में जो पे का 50% मिलता है, तो फर्स्ट 90 डेज सस्पेंशन पीरियड में 50% पे मिलेगा। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, इट मीन्स 90 डेज सस्पेंशन के बाद, इफ द डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय, अलाउंस में बी इंक्रीज्ड बाय अप टू 50%, दैट इज टू से 75% ऑफ पे। यहाँ पर 2 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। यदि उसका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है बियॉन्ड 90 डेज, और जो डिले हुआ है वो कंसर्न एम्प्लॉय के वजह से है। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है, जो डिले हुआ है वो कंसर्न एम्प्लॉय के वजह से नहीं है, कंसर्न एम्प्लॉय के वजह से नहीं है। ओके, द डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय, अलाउंस में बी इंक्रीज बाय अप टू 50%, और उसको कितना मिलेगा 75% ऑफ पे। और जो बीट सी है, आफ्टर 3 मंथ्स इफ द डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय, अलाउंस में बी रिड्यूस्ड बाय, जो बीट सी है, यदि सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है, क्यों किया गया, क्योंकि वो उसका वजह मेनली एम्प्लॉय है, वो जो फैक्ट है एक्चुअली कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा है इंक्वायरी कमेटी के सामने, तो उसमें डिक्लेयर होता है कि जो डिले हुआ है वो एम्प्लॉय, कंसर्न एम्प्लॉय के वजह से हुआ है, तो उस केस में अलाउंस में बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 50%, इट मीन्स पे का कितना मिलेगा 25%। तो जनरली आपको याद रखना है, सस्पेंशन पीरियड का 90 डेज के अंदर, इट मीन्स 3 मंथ्स के अंदर 50% ऑफ पे मिलेगा, और यदि सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंड होता है आफ्टर 90 डेज और आफ्टर 3 मंथ्स, यदि वो एम्प्लॉय के वजह से नहीं है, तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो 50% हाइक होगा, तो इट मीन्स उसको 75% ऑफ पे मिलेगा। यदि सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंड होता है बियॉन्ड 90 डेज, और क्यों एक्सटेंड किया गया, क्योंकि एम्प्लॉय के वजह से है, वो कुछ फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉय के वजह से एक्सटेंशन किया गया। तो इस केस में उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% रिड्यूस कर दिया जाता है, और उसको इट मीन्स 25% ऑफ पे मिलता है। राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन डैश FR 53, FR 10, FR 54, FR 56। अभी मैं बताया था फंडामेंटल रूल 53, FR 53 में मेंशन है, यदि कोई एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसमें उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। तो वो फंडामेंटल रूल 53 में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए। जो FR 52 है, द पे एंड अलाउंसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस सीज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल। फंडामेंटल रूल 52 है, इसमें कहा गया है यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस कर दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है, और जिस डेट में उसको रिमूव कर दिया जाएगा और डिसमिस कर दिया जाएगा, उसी डेट से उसका पे एंड अलाउंस बंद हो जाएगा। FR 53 सब्सिस्टेंस अलाउंस है, यदि कोई एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, अभी मैं डिस्कस किया, तो FR 53 में है। FR 54, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट who has been dismissed, removed or compulsorily retired is reinstated as a result of appeal or review। यदि पहले गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, और
कंपल्सरी उसको रिटायर कर दिया गया था, मगर अभी अपील और रिव्यू से उसको री इंस्टेट किया गया। पहले से उसको आइदर डिसमिस कर दिया गया था कि और रिमूव कर दिया गया था कि और कंपल्सरी उसको रिटायर कर दिया गया था, मगर वो एम्प्लॉई अपील और रिव्यू में उसको फिर री इंस्टेट किया गया, तो वो FR 54 में मेंशन है। FR 55 लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। हम जानते हैं यदि कंसर्न एम्प्लॉई का सस्पेंशन पीरियड चल रहा है उसमें उसको कोई लीव नहीं मिलेगा, तो वो फंडामेंटल रूल 55 में है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8, प्रायर परमिशन और सैंक्शन इज नेसेसरी फॉर ज्वाइनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफिस आवर्स, ज्वाइनिंग संयुक्त सदाचार समिति, बीट सी अंडरटेकिंग सोशल और चैरिटेबल वर्क, बीट डी पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एज एमेचर। तो आंसर इज बीट ए, ज्वाइनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफिस आवर्स। आंसर इज बीट ए। उसके लिए प्रायर परमिशन का जरूरत है। प्रायर परमिशन और सैंक्शन इज नेसेसरी फॉर ज्वाइनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स के बाद यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉई वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करता है तो उसको प्रायर परमिशन लेना चाहिए कि गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन होना चाहिए, राइट। तो आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 9, according to the DAS guidelines, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 enacted। ऐसा कौन सा गाइडलाइंस है जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 को इनैक्ट किया गया? तो बीट ए विशाखा, बीट बी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बीट सी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन, बीट डी प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन। हियर आंसर इज बीट ए, विशाखा गाइडलाइंस, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस, PPR प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 एनैक्टेड। उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आंसर इज बीट ए विशाखा। इन 1992 a rural level change agent Vanwari Devi was engaged by the state of Rajasthan as a Sathin to work towards the prevention of the practice of child marriages. During the course of her work, she prevented the marriage of a 1-year-old girl in the community. Her work was met with resentment and attracted harassment from men of that community. Vanwari Devi reported this to the local authority, but no action was taken. That omission came at great cost. Vanwari was subsequently gang raped by those very men. Then, based on the facts of Vanwari Devi's case, a PIL, a public interest litigation, was filed by Visakha. Visakha means एक ग्रुप है, एक वोमेन ग्रुप है। ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फाइल्ड बाय विशाखा एंड अदर वोमेन ग्रुप्स। जो विशाखा है वो एक वोमेन ग्रुप है। सो मेन विशाखा एंड अदर वोमेन ग्रुप्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड यूनियन ऑफ इंडिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट प्रपोज दैट sexual harassment be recognized as a violation of women's fundamental right to equality, and that all workplaces, establishments, institutions be made accountable and responsible to uphold these rights, right। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। What is the time limit for filing a sexual harassment complaint? Bit A within 3 months of the incident, Bit B within 2 months of the incident, Bit C within 1 month of incident, Bit D instantly। यदि कोई कंसर्न वोमेन एम्प्लॉय वो इफ सी इज सेक्सुअली हरास्ड, देन वो जिस डेट में उसको सेक्सुअली हरास किया गया उसका कितने दिन के अंदर, कितने मंथ्स के अंदर वो कंप्लेन लॉन्च करेगा, राइट। तो यहां पर याद रखना है आंसर इज बीट ए विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट। जिस डेट में इंसिडेंट हुआ उसका 3 months के अंदर बेसिकली द अग्रीव्ड वोमेन एम्प्लॉय वो उसको कंप्लेन करना चाहिए, ओके, विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट। यदि इंसिडेंट्स रिपीटेडली होता है तो जो लास्ट इंसिडेंट होगा उसका 3 months के अंदर
द कंसर्न अग्रीव्ड वोमेन एम्प्लॉई मस्ट लॉज कंप्लेन. तो हियर आंसर इज बीट ए विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट. राइट, वही चीज में लिखा इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स 3 months ऑफ लास्ट इंसिडेंट. चलो क्वेश्चन नंबर 11 एक एलटीसी के ऊपर है, लीव ट्रैवल कंसेशन. वेदर एलटीसी इज एडमिसिबल फॉर जर्नीज ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडेज विदाउट एनी लीव. ऐसा कोई लीव नहीं लिया वीकेंड हॉलीडेज में, सपोज सैटरडे संडे दोनों हॉलीडेज आ गया, जैसे सेकेंड सैटरडे की फोर्थ सैटरडे संडे ऐसे हॉलीडेज आ गया, क्या आप एलटीसी ले सकते हो? बीट ए एडमिसिबल, बीट बी एडमिसिबल इन एक्सेप्शनल केसेस, बीट सी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू कंडीशंस, नॉट एडमिसिबल. यहाँ पर आंसर डी नॉट एडमिसिबल, क्योंकि एलटीसी लेने के लिए चाहे एक दिन हो उसको लीव लेना है. कोई वीकेंड हॉलीडेज में आप एलटीसी नहीं ले सकते. कोई कैजुअल लीव लिया है, स्पेशल कैजुअल लीव और लीव, उसमें हो आप एलटीसी ले सकते हो. तो हियर एक्चुअली एलटीसी इज नॉट एडमिसिबल. आंसर इज बीट डी. थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन. द लीव ट्रैवल कंसेशन शैल बी एडमिसिबल टू पर्सन्स इफ दे हैव कंप्लीटेड 1 year's कंटिन्यूअस सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द डेट ऑफ जर्नी परफॉर्म बाय हिम और हिज फैमिली आज द केस में बी. तो अवेल ऑफ द ऑकेजन ये वेरी कॉमन है, तो फर्स्ट 1 year कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए. द लीव ट्रैवल कंसेशन शैल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव. ओनली लीव पीरियड में एलटीसी को लेना होगा, इंक्लूडिंग कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, अर्नड लीव. ओके, उसमें ले सकते हो. और अभी भी ये मेंशन है कि चाइल्ड केयर लीव में सीसीएल में भी कंसर्न वोमेन एम्प्लॉई वो एलटीसी ले सकता है. तो यहाँ पर याद रखना है कोई भी लीव पीरियड, जैसे लीव पीरियड कैजुअल लीव है कि स्पेशल कैजुअल लीव है कि अर्न लीव है कि चाइल्ड केयर लीव है, इसमें एलटीसी ओके कंसर्न एम्प्लॉई ले सकता है. कैनॉट बी अवेल्ड ऑफ ड्यूरिंग क्लोजिंग हॉलीडेज ओनली विदाउट टेकिंग एनी लीव. जो क्लोजिंग हॉलीडेज में एलटीसी नहीं लिया जा सकता, ओके, विदाउट टेकिंग एनी लीव. राइट, क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे. व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड टू क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर एलटीसी व्हेन नो एडवांस इज डन. यदि एडवांस लिया है एलटीसी के लिए, यदि एडवांस लिया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी, उसका 3 months के अंदर रीइंबर्समेंट के लिए जो भी टिकट्स वगैरह है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा. ठीक है, यदि एडवांस नहीं लिया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी विद इन 3 months द क्लेम मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफिस. यदि एडवांस लिया गया है तब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी विद इन 1 month द क्लेम मस्ट बी सबमिटेड. तो यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना है. एडवांस लिया है 1 month के अंदर उसको सबमिट करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी. एडवांस नहीं लिया है विद इन 3 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी द क्लेम मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफिस. तो यहाँ पर एडवांस नहीं लिया है, तो यहाँ पर जो आंसर है बीट ए है, नॉट एक्सीडिंग 3 months. क्योंकि जो एडवांस मिलता है यहाँ पर थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ. जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा टू एंड फ्रो जाने का, उसका 90% अप टू 90% एडवांस मिलता है. और जिस डेट में एडवांस मिलता है उसका 10 days के अंदर टिकट्स को ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ता है. राइट, यदि एडवांस लिया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी विद इन 1 month द क्लेम मस्ट बी सबमिटेड. यदि एडवांस नहीं लिया है तो विद इन 3 months ऑफ द कंप्लीटेड रिटर्न जर्नी द क्लेम मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफिस. सो हियर एडवांस नहीं लिया है, आंसर इज बीट ए, नॉट एक्सीडिंग 3 months. क्वेश्चन नंबर 13. Which item will not come under the purview of definition of goods? फाइनेंशियल रूल, आप रूल देख लीजिए, रूल 143
GFR 2017 जो 143 रूल है वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स में क्या क्या आएगा। इसमें दिया है 4 ऑप्शन दिया गया है। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर, पैटेंट्स, व्हीकल, एयरक्राफ्ट शिप्स, बीट सी बुक्स, पब्लिकेशन, पीरियडिकल्स, बीट डी व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट शिप्स। आंसर इज बीट सी बुक्स, पब्लिकेशन, पीरियडिकल्स। ये डेफिनेशन ऑफ गुड्स में नहीं आएगा। बुक्स, पब्लिकेशन, पीरियडिकल्स, आंसर इज बीट सी। थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अंडर रूल 143 गुड्स इंक्लूड ऑल आर्टिकल्स, कमोडिटी, लाइव स्टॉक, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, स्पेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircraft, ships, etc. or intangible products like services. Intangible products mean services like software, technology transfer, licenses, patents, other intellectual properties purchased or acquired for the use of government. ये सब goods में आएगा, but excludes books, publications, periodicals, etc. for a library. ये include नहीं होगा definition of goods में। Also, the term goods also includes works and services like transportation, insurance, installation, commissioning, training and maintenance। ये सब goods में include होगा। तो जो exclude होगा रेड पार्ट में देख लीजिए, excludes books, publications, periodicals etc. for library। Clear? Question number 14. In case of public procurement, care should also be taken to avoid purchasing quantities in excess of requirement to avoid dash transportation cost, बीट बी इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, बीट सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बीट डी सरप्लस कॉस्ट। यहाँ पर आंसर बीट बी इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है उसका जितना रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोक्योरिंग एंटिटी द गुड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड। इफ मोर गुड्स प्रोक्योर्ड एंड इज मोर देन द रिक्वायरमेंट, उसमें कैरिंग कॉस्ट लगता है क्योंकि उसको अकोमोलेटेड किया जाता है वो गुड्स को, तो उसमें इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट लगता है। तो जितना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द प्रोक्योरिंग एंटिटी शुड प्रोक्योर द गुड्स। ओके, if procurement of goods is more and it exceeds the requirement, then automatically carrying cost, inventory carrying cost would be more। so उसको अवॉइड करना है, तो आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलटीसी एडवांस ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अभी मैं बताया था जो लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए जो एडवांस मिलेगा वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का 90 अप टू 90% ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एडवांस मिलता है, राइट। तो यहाँ पर जो बीट्स है 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जर्नी, अप टू 90% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर, 80% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर, 3/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जर्नी। दिस आंसर इज बीट बी, अप टू 90% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर। जो एस्टिमेटेड फेयर है टू एंड फ्रो उसका 90%, अप टू 90% एडवांस मिलेगा। और जिस दिन में जिस डेट में एडवांस मिलेगा उसका 10 डेज के अंदर टिकट्स को जमा करना है ऑफिस में। ओके, तो आंसर इज बिट बी। तो एडवांस लिया है, और एक इंपॉर्टेंट है, एडवांस लिया है विद इन 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी। जब रिटर्न जर्नी कंप्लीट हुआ उसका 1 मंथ के अंदर क्लेम को सबमिट करना है ऑफिस में, राइट। तो यहाँ पर आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 16, द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू। अभी चलिए सिविल सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 में क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड, द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द प्लेस एट व्हिच ही फॉल्स इल। आंसर इज बिट बी। 4 ऑप्शन है, हिज हेडक्वार्टर्स, द प्लेस एट व्हिच ही फॉल्स इल, द प्लेस ऑफ हिज परमानेंट रेसिडेंस, नॉन ऑफ द अबव। आंसर इज बिट बी, द प्लेस एट व्हिच ही फॉल्स इल। जिस प्लेस में गवर्नमेंट सर्वेंट इल कंडीशन में जाता है तो उसी प्लेस में ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट को डिटरमाइन किया जाएगा, ऑथराइज में एएमए को डिटरमाइन किया जाएगा। ओके, द प्लेस एट व्हिच ही फॉल्स इल, बहुत बार क्वेश्चन आया, आंसर इज बिट बी। अब देख लीजिए CSMA रूल्स 1944। चलो क्वेश्चन नंबर 17, in case of transfer of a government servant, his family may travel to the new station
यदि गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र होता है, उसका फैमिली, हिज फैमिली मे ट्रैवल टू द न्यू स्टेशन, दोनों है कि ट्रांसफ़र के पहले, ट्रांसफ़र के बाद, तो बीट ए विद इन 6 months आफ्टर द ट्रांसफर, बीट बी विद इन 1 month बिफोर द ट्रांसफर, बीट सी एट एनी टाइम आफ्टर ट्रांसफर, बीट डी आइदर ए और बी। हियर आंसर इज आइदर ए और बी। यदि ट्रांसफर के बाद उसका फैमिली ट्रैवल करता है टू द न्यू स्टेशन, इट मीन्स विद इन 6 months आफ्टर द ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद। ट्रांसफर के पहले ट्रैवल करता है न्यू स्टेशन को विद इन 1 month बिफोर द ट्रांसफर। सो आइदर विद इन 6 months आफ्टर द ट्रांसफर और विद इन 1 month बिफोर द ट्रांसफर। आपको याद रखना है, ट्रांसफर के बाद विद इन 6 months, ट्रांसफर के पहले विद इन 1 month। ओके, इस फैमिली में ट्रैवल टू द न्यू स्टेशन। आंसर इज बी डी, आइदर ए और बी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 जेम पोर्टल के ऊपर है। अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 lakh थ्रू द जेम सेलर having lowest price amongst the available sellers of dash different manufacturers. Answer is here beat A at least 2, beat B at least 3, beat C at least 4, beat D at least 5. Answer is beat B at least 3. Above ₹25,000 and up to ₹5 lakh through the gem seller, government e-marketplace seller, having lowest price amongst the available sellers of at least 3 different manufacturers. तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन। अभी जेम पोर्टल से खरीदने के लिए मैंडेटरी है गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटीज़ को, आप जानते हो। यदि जेम पोर्टल में गुड्स अवेलेबल है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रोक्यूरिंग एंटिटीज़ टू परचेज गुड्स फ्रॉम द जेम पोर्टल। यदि जेम पोर्टल में नहीं है तब वो बाहर से, जैसे लिमिटेड टेंडर है कि एडवर्टाइज टेंडर है, उसमें वो प्रोक्योर कर सकता है। मगर जेम पोर्टल में है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटीज टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम द जेम पोर्टल। यहाँ पर दिया है कि अप टू ₹25,000 जेम पोर्टल के ऊपर, अप टू ₹25,000 कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर जो जेम पोर्टल में है उससे प्रोक्योर किया जा सकता है। अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 lakh, इसमें क्या है, एटलीस्ट मिनिमम 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को डिटेक्ट किया जाएगा जेम पोर्टल में और उनका प्राइस को एनालाइज किया जाएगा और जो लिस्ट प्राइस में देगा उससे प्रोक्योर किया जाएगा। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 सेलर्स को डिटेक्ट किया जाएगा। ओके, उनका स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करने के बाद एटलीस्ट मिनिमम 3 सेलर्स, इससे 3 सेलर से ज़्यादा हो सकता है मगर एटलीस्ट 3 सेलर्स को डिटेक्ट किया जाएगा और फिर उनका स्पेसिफिकेशन को एनालाइज किया जाएगा। मगर स्पेसिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट व प्राइस, जो कम प्राइस में देगा तो उससे प्रोक्योर किया जाएगा। राइट, देन गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी परचेज अबव ₹5 lakh वर्थ ऑफ गुड्स थ्रू रिवर्स ऑक्शन टूल फ्रॉम द जेम रजिस्टर्ड सप्लायर। यदि कोई प्रोक्योरिंग एंटिटी वो जो गुड्स प्रोक्योर करना चाहता है उसका कॉस्ट अबव ₹5 lakh है, तब रिवर्स ऑक्शन टूल जो ऑनलाइन बोली होता है, ऑनलाइन बिडिंग से जेम पोर्टल से प्रोक्योर किया जाएगा। मगर यहाँ पर वर्थ ऑफ गुड्स होगा मोर देन ₹5 lakh। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन डिड द फंडामेंटल रूल्स कम इनटू फोर्स टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो FR रूल्स है, फंडामेंटल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 15/8/1947, बीट B 21/7/1950, बीट C 1/1/1925, बीट D 1/1/1922। तो आंसर इज बीट D, 1 January 1922 फंडामेंटल रूल्स केम इन टू फोर्स टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। आंसर इज बीट D, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 January 1922 में फंडामेंटल रूल्स केम इन टू फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आज का है। फॉरेन सर्विस मीन सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डैश द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटोरी, बीट डी एनी सोर्स अदर देन द अबोव। आंसर इज बीट डी, एनी सोर्स अदर देन द अबोव। बेसिकली जो सैलरी मिलता है बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो यूनियन टेरिटोरी का एम्प्लॉय है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटोरी। यदि फॉरेन सर्विस में केस में यदि कोई
एम्प्लॉई फॉरेन सर्विस में जाता है डेपुटेशन में, जैसे कोई कॉरपोरेशन की यानी ऑटोनोमस बॉडी, राइट, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें चला जाता है डेपुटेशन में, तो वो फॉरेन सर्विस कहा जाता है। उसमें द गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन द अबव। आंसर इज बी डी, राइट। तो ये आज 20 क्वेश्चंस था। तो आगे मैं इसे सीरीज लाता रहूँगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए। तो डेफिनेटली इट वुड बी यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू फॉर इनकमिंग प्रिंसिपल एग्जामिनेशंस। सो माय फ्रेंड्स, if you like my video, then please subscribe my channel so that you can get notification in subsequent and in post-turing time. So please my friends, subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. Thank you.